of TTS-23. This is an open test. Okay. Question number one. India's total capital expenditure. India's total capital expenditure, total, as percentage of GDP has consistently and increased in last 10 years. Question 1 का statement 1. Disinvestment is considered as capital expenditure in India. ठीक है, तो पहले पता होना चाहिए what do you mean by capital expenditure. Why this question? Because capex was in news. ठीक है, और ये बजट में जो है आ रखा था. कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? ठीक है, पहले वो, although this question I would say कि this theme I have asked in almost almost 2 or 3 times in this test series. ठीक है, so I won't explain much. The correct answer is nothing. Nothing increases consistently. That doesn't happen generally. ठीक है, consistent का मतलब होता है हर साल ऐसे 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 ही जा रहा है. कभी तो you will see that there would be a dip. There would be a dip and then so this is overall increase. कि यहाँ से start हुआ, यहाँ पे गया. अरे आवाज आ रही है ना तुम लोग को मेरी? एक बार हाँ बताओ. आ रही है। इसका मतलब हुआ दैट ओवरऑल आप जो है बढ़ गए. ठीक है, ओवरऑल आप यहाँ से यहाँ चले गए. दिस इज ओवरऑल इंक्रीज. ठीक है, और कंसिस्टेंट इंक्रीज का मतलब होता है कि ड्यूरिंग दी होल पीरियड यू आर जस्ट इंक्रीजिंग. दिस इज नॉट कंसिस्टेंट इंक्रीज बट ओवरऑल इंक्रीज. ठीक है, एंड दिस इज योर consistent increase. Now, disinvestment is considered capital expenditure. Capital expenditure का मतलब होता है that particular thing, that particular expenditure is creating some sort of a infrastructure, or I would say some sort of an asset. ठीक है, so it should increase your asset. So if you are doing disinvestment, so you are decreasing your asset. Why? Because पहले आप LIC को 100% ओन करते थे. So whatever profit it was making or loss for that matter, ठीक है, whatever profit it was making, you were sharing that profit 100%, and also it was 100% owned by you. ठीक है, now suddenly you are like, no, I'll keep 60% only, I'm selling 40%. So that disinvestment of 40% reduced your asset, so it can't be your capital expenditure. I hope it is clear now. Question number 2. अब थोड़ा भगूंगा मैं, पहले एक दो क्वेश्चन आसानी से समझाता हूँ फिर भागता हूँ. Which one of the following can be considered parts of public digital infrastructure? Public digital infrastructure का मतलब क्या हुआ? Something which is available to public. ठीक है, और generally which is made by the government. Public infrastructure का मतलब आपको पता होगा आई होप. ठीक है, so railways are part of public infrastructure. ठीक है, sports ground, are they part of public infrastructure? If they are made by the government and available freely to each and everyone. So eShram, DigiLocker, ONDC, all of them are public infrastructure. But BharatPay is a private company
जो आपको पता है, जिसके वन ऑफ द फाउंडर इज वेरी फेमस. वैसे इन जनरल आउटसाइड द स्टार्टअप सर्कल ही इज वेरी फेमस, बट विद इन द स्टार्टअप सर्कल ही इज अ फ्रॉड. You know who I'm talking about. Then you have angel tax in India. Again, this was also in the budget only. That's why this question. Angel tax, it is applicable only to resident Indian investors. Now this is wrong. ठीक है? Why? Because that's the whole proposal. Yeah, I would say change, क्योंकि ये budget के through ये बदल जाएगा. Now, after the passage of this budget, it is applicable to all Indians as well as outsiders. या जैसे बोलते हैं foreigners, या जो भी आप कहना चाहो. So it is applicable to both now. ठीक है? So one is wrong. फोन काट दे तो भी फोन कर जा रहे हैं बेवकूफ. ठीक है? So one is wrong. What about the second one? It was introduced after amending income tax. Yes, this is correct. It was introduced in 2012, I guess. I don't remember the exact. I think 2012 by the previous government, UP government. The whole aspect was that we will uh, charge the uh, whoever is making investment in some of these startups, not all startups, उनको टैक्स अपन चार्ज करेंगे. नॉट सबको नहीं, याद रखना. ठीक है? तो न्यू स्टार्टअप्स को जनरली एंजल टैक्स कहाँ से ही लगेगा. ठीक है? तो पहले क्या होता था, up till now it was applicable only to resident Indian investors, not to the foreign investors. बाहर के जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, आई होप यू नो एंजल इन्वेस्टर्स. सो बाहर के जो एंजल इन्वेस्टर्स होते थे उन पर नहीं लगता था. तो दिस वाज क्रिएटिंग एन इशू. ठीक है? अभी भी क्या सभी स्टार्टअप पे लगेगा? नो. ये देखो स्टेटमेंट 3, ऑल स्टार्टअप्स रिकॉग्नाइज्ड एज स्टार्टअप बाय दिस इज आर एग्जम्प्ट फ्रॉम दिस टैक्सेशन. ठीक है? समझ में आ गई? सो दीज पर्टिकुलर स्टार्टअप्स आर एग्जम्प्ट. ओके, सो आंसर इज सी. 2 and 3. एक आपको सिर्फ स्टेटमेंट 1 पता होना चाहिए था. दैट टू वाज सिंपली बेस्ड ऑन व्हाट इज बीइंग प्रपोज्ड इन द बजट. ठीक है? So there was this apprehension that because of this, new funding will not come. This is anti-startup, but and all that. But मजे की बात ये है कि फिर गवर्नमेंट बोलते हैं that all startups which have been identified or recognized by DPIIT as a startup, उनको कोई टैक्स नहीं लगाएंगे. बट दिक्कत ये है कि हार्डली 10% ऑफ टोटल स्टार्टअप्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाई DPIIT. तो ये भी एक अपने आप में बड़ी चीज है. खैर, क्वेश्चन नंबर 4. Again, this was, so some of the questions are straight from budget and economic survey. ठीक है? क्योंकि फेब में ये पेपर बनाया गया था. So फेब was the time जब आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों आए थे. That's why you will see most of the questions are from economy initially and are from the very recent happening. Counter cyclical capital buffer has been mandated under Basel 3. ठीक है? ये तो सबको पता है. हो कल भी हम जब डिस्कस कर रहे थे मृणाल, तब जो उसमें मेंशन था, ये नहीं मेंशन था कि क्या होता है. दैट वील सी टुडे जब एनपीए हम एनपीए वाला लेक्चर अपन जब डिस्कस करेंगे. बट इट वाज एनीवेज इज अंडर बेसल 3. पीडी 365 में अपन ने डिस्कस किया था. The main objective of CCV is to protect banks from the effects of the business cycle. ठीक है? The credit to GDP ratio is determinant of CCV. Okay? A lower credit gap is associated with lower resilience of financial system. तो पहले स्टेटमेंट 1 मुझे पता है दैट इट इज करेक्ट. ठीक है? बेसल 3 के अंदर जो है इट इज वन ऑफ द इंडिकेटर. ठीक है? सो 1 इज करेक्ट. सो दिस विल बी गॉन एंड दिस वुड बी गॉन. नाउ आई हैव टू just know at least one out of these 3, or I have to guess at least one out of these 3. Look at the statement number 2. The main objective is to protect banks from the effects of the business cycle. No, business cycle नहीं है ये. ठीक है? You should know this much that this is not the business cycle. ठीक है? कौन सी साइकिल होगी यहाँ पे, कोई बता सकता है? Can anyone tell me? Recession cycle. That would be business cycle only ना. बिजनेस साइकिल वही होती है. ये बैंकिंग साइकिल होगी. ठीक है?
So there are two types of cycles broadly. एक बिजनेस साइकिल होता है, एक फिस्कल साइकिल होता है, ठीक है। सॉरी, बिजनेस एंड फिस्कल ऑलमोस्ट ओवरलैप करते हैं एक दूसरे पे, कभी कभी, जनरली दे ओवरलैप ऑन ईच अदर, समटाइम्स दे डोंट, ठीक है। तो बिजनेस साइकिल नहीं होती है ये, वो दूसरी वाली साइकिल होती है विच इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो उस पर डिपेंड करता है। एनीवेज, अगर ये नहीं पता है, चलो ठीक है, तो स्टेटमेंट 4 देखो, अब आप 3 देखो, क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो इज डिटरमिनेंट ऑफ दिस। यस, ये तो सिंपल सी चीज है ना। ये नहीं बोल रहा है कि क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनडायरेक्टली होता है, बट दिस इज अ नॉर्मल थिंग दैट किसी भी इकोनॉमी में क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो जो होगा, दैट विल डिसाइड द काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर, ठीक है। अगर क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो कम होगा, ठीक है, अगर क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो का मतलब ये हुआ, समझाता हूँ, क्रेडिट टू जीडीपी का मतलब हुआ क्रेडिट अपॉन में जीडीपी, ठीक है। व्हाट क्रेडिट? द क्रेडिट विच इज गिवन बाय द बैंक्स, ठीक है। सो क्रेडिट ज्यादा अगर आप दोगे, ठीक है, और जीडीपी को उतना ही फिक्स रखते हो, देन दिस रेशियो विल इंक्रीज, समझ रहे हो। यानी बैंक ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट दें और जीडीपी को मैं अभी भी उतना रखूं तो 100 थी, ठीक है। इन अनदर केस मैंने 20 रुपीज दिए और जीडीपी मेरी 100 थी, सो इन बोथ केसेस मेरा क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो ये वाला ज्यादा हो गया, ठीक है। तो फेल होने के चांसेस, ज्यादा मैं क्रेडिट दूंगा इन द सेम इकोनॉमी, तो फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो मेरे को सीसीसी भी बड़ा रखना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गई ना। लोअर क्रेडिट गैप इज एसोसिएटेड विद लोअर रेसिलेंस, ये उल्टा हो गया फिर। आई होप आपको समझ में आ गया हो, नहीं आया तो प्लीज जस्ट गूगल इट, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है और वैसे बहुत इजी है। आई होप समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन, बट दिस इज इम्पोर्टेंट। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज आप खुद से भी थोड़ा इस पर मेहनत करें, दिस इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द टैक्सेस गिवन अबव इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू द टोटल रेवेन्यू। ये मुझे याद नहीं है, जब मैंने बनाया था तब याद था, बट फिर भी आई जस्ट गैस इट, आई कांट से कि वो पूरा सही होगा, आई गैस इट फॉर यू गाइस, ठीक है। ओके, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी लास्ट में सबसे बड़ा होना चाहिए। सो आई फील जीएसटी सबसे ज्यादा दे रहा होगा मेरे को पैसा, ठीक है। देन कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी, तो आई फील कि मेरा कस्टम ड्यूटी ज्यादा रहेगा, ठीक है। आई फील दैट कस्टम ड्यूटी ज्यादा रहेगा, एक्साइज, आई फील एक्साइज ज्यादा रहेगा क्योंकि ज्यादा गवर्नमेंट जो है एक्साइज कमा रही होगी, ठीक है। क्योंकि एक्साइज जनरली सिन टैक्स, सिन उन पे लगता है ना। तो 4 से स्टार्ट होगा आई थिंक एंड 1 पे खत्म होगा, बट 2 ऑप्शन है ऐसे, सॉरी। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। ऑल्सो पर्सनल इनकम टैक्स तो आई थिंक जीएसटी से जस्ट पहले आना चाहिए, तो ये है। क्या आंसर डी है क्या? कुछ भी मिस्टेक यस भी देखा? सर, हाँ डी है। ओके ठीक है, ओके फिर तो ठीक है। एनीवेज, तो ये बस पढ़ लेना इसको। पीआई भी निकालता है एक सर्कल कि 1 रुपया कहाँ से आ रहा है गवर्नमेंट का, ठीक है। उसमें वो बताते हैं कंट्रीब्यूशन किसका कितना है, तो हर साल का देख लेना, बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट। कभी कभी पूछ लेते हैं, कई बार उन्होंने सीडीएस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में, सीएपीएफ में, दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। सीएसई में अभी तक नहीं पूछा इस तरह का कोई क्वेश्चन, बट यू नो वी हैव टू कवर द ट्रेंड ऑफ द यूपीएससी अक्रॉस द एग्जाम पेपर्स, तो इसलिए प्लीज गो थ्रू दैट। In which of the following cases the demand of a good is likely to increase? I think again repeated question हो गया, मतलब not the question is repeated but the theme is repeated. I've discussed the demand very recently in 2021 के paper में, I've discussed that. I hope you guys know it. If you guys have not followed the PYQ discussion, just go to the YouTube, ठीक है। वहाँ पे कप्तान यूपीएससी वाले चैनल पे I have just made one playlist, उसमें 4 पार्ट में 2021 has been discussed and we'll be discussing 2020 in coming days, ठीक है। So go through those videos because they'll help you understand the motivation of the examiner कि why certain question was asked
एंड ऑल्सो सम ऑफ द हैक्स, ट्रिक्स एंड सम कॉमन सेंस जो आप लगा सकते हो एग्जाम या क्वेश्चन को सॉल्व करने में. मूविंग ऑन, आई होप यू गाइस कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. आसान क्वेश्चन है. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is our contingent function functions of money. ठीक है, contingent function. ठीक है, storage of value, this is not a contingent function, ये तो basic function हो गया ना उसका. ठीक है, basis of credit system, yes, this is what a contingent. medium of exchange, it is the, ये तो essential function हो गया. ये एनसीईआरटी में दे रखे हैं एज इट इज, इसलिए वी हैव आई मीन आई हैव कंपाइल्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी बिकॉज ऐसे ही दे रखा है. एंड दिस हैज बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी इन सीडीएस आई थिंक. रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल वेल्थ, दिस इज अगेन अ कंटिजेंट फंक्शन. अब ये क्यों है, कैसा है, ये नहीं पता है. किसी एनसीईआरटी ने किसी एक इकोनॉमिस्ट की अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी को कॉपी करके दे दिया, उसमें उन्होंने दे रखा है कंटिजेंट फंक्शन, तो आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा. So 2 and 4 are contingent functions. What are other functions of money? You can Google that. बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा. A faster, sustainable and more inclusive growth was the 12th five-year plan. ठीक है, सबको पता है, आई होप सबको पता हो. RBI decides to increase the policy corridor by reducing the floor of liquidity adjustment facility in its monetary policy. It is most likely to. Very easy question. Why this question? अभी अपन ने कल परसों ही we discussed PD 365, उसमें we were talking about SDR. ठीक है, तो अभी recently SDR has been introduced. ठीक है, standing deposit facility, sorry, SDF standing deposit facility has been introduced as the floor of the liquidity adjustment facility. ठीक है, तो इसलिए this question is being asked. It's a very easy question, आराम से आप कर सकते हो. I'm not going to explain this particular. In India, the quality control orders are notified by. So these are generally notified by IAS. ठीक है, but only after the dip. This. ठीक है, डिप बोलते थे इसको पहले, अभी कुछ और नाम हो गया, DPIIT. ठीक है, मूविंग ऑन, द फॉलोइंग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, CDSL, और ये हो गया मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल सिक्योरिटी, NDS, NSDL. Which of the institution given above are which of the following institution given above are notified by SEBI as market infrastructure institutions? अब ये तो क्या ही क्वेश्चन है. मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, दे वर इन द करंट अफेयर्स, दे वर इन द न्यूज. तो मार्केट का मतलब पता है, ठीक है, स्टॉक मार्केट. तो ऑल ऑफ देम आर पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन. सभी तो स्टॉक मार्केट में हेल्प कर रहे हैं ना आपको. सो ऑल ऑफ देम आर D. Question number 12. Payment of fair and remunerative price across the country is governed by the Sugarcane Control Order, this which mandates payment within 14 days of the date of delivery of the cane. ठीक है, सो पहले ये पता होना चाहिए. आई होप ये तो सबको पता होगा ये वाला पार्ट. ठीक है, अभी 14 days मे बी और मे नॉट बी. FRP is the price declared by the state government and it varies from state to state. यहीं पे ये गलत हो गया. It is declared by the central government. ठीक है, it is declared by the central government. On the top of FRP, state government might give some additional recommendations and उस हिसाब से the sugarcane price might vary from state to state. तो question अगर आ जाए कि why does the sugarcane price varies from state to state, it's not because FRP is the price declared by the state government. State government जो है इसके ऊपर एक price declare करती है. ठीक है, FRP is declared by the central government, just like जो दूसरा होता है अपना MSP. Delays in payment can attract an interest up to 25% per annum. ठीक है, ओके. अब देखो 1 तो सही है ही, तो ये तो फिर अपना 14 डेज, एक डेटा सही हो गया. स्टेट 1 डेटा था तो वो सही हो गया, अपने को पता पड़ गया. यानी इन दोनों में से एक डेटा गलत होगा पक्का. ठीक है, ये आप अज्यूम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी डेटा है, यहाँ पे भी डेटा है. 3 डेटा में 2 ही डेटा करेक्ट देगी एटमैक्स यूपीएससी, तीनों नहीं करेक्ट दे सकती.
फिर थोड़ा प्रोबेबिलिटी खोलो, 25% इंटरेस्ट कौन दे पाएगा यार? इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशन गवर्नमेंट कांट कीप। ठीक है, डिले ऑफ पेमेंट, एक दिन का डिले हो गया तो 25% इज अ वेरी बिग नंबर। ठीक है, तो अनलाइकली टू बी ट्रू। 3 is wrong, so answer is D. Then look at this fourth statement also. As per sugarcane control order, no new factory shall be set up within the radius of 15 kilometer of any existing factory. This is this into correct है ये। ठीक है, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 13। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाई, सबको पता है 10 डिग्री। 9 डिग्री से कौन सेपरेट होता है बताओ? 8 डिग्री से कौन सेपरेट होता है बताओ क्विकली, कोई बता सकता है क्या? अरे अब तो पेपर आने वाला है, अब तो बता दो। 9 डिग्री लक्षद्वीप लक्षद्वीप। और मिनिकॉय। 8 डिग्री से मालदीव्स एंड मिनिकॉय होता है सर, ठीक है, और और 8 डिग्री मिनिकॉय से? और लक्षद्वीप 9 डिग्री से होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और 11 डिग्री से? 11 से कावारती और ये कोई ना, अमन दिवी एंड, हाँ, नहीं नहीं नहीं, अमन दिवी एंड नोरे। ठीक है, देख लेना आप, ठीक है। और एक और था, आई थिंक 6 डिग्री भी है एक, और 6 डिग्री कहाँ से पास होता है? वो होता है इंडोनेशिया से। ठीक है, दीज आर, अब इसी क्वेश्चन के साथ में आप लिख के बना लो एक बार, तो याद हो जाएगा तुमको। ठीक है, ओके, ज्यादा नहीं भागना है, बस जो इंडिया से रिलेटेड हो। वो तो 6 डिग्री याद आ गया, मैंने बता दिया। बस जो इंडिया से रिलेटेड हो एटलीस्ट वो पता होना चाहिए। मूविंग ऑन, न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ इज एन एनुअल समिट held under the aegis of the World Food Program. ठीक है, न्यूट्रिशन अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क इज होस्टेड बाय न्यूट्रिशन report. NAF will help ensure transparent reporting of the progress made on the implementing these commitments. तो ठीक है, नॉर्मली आपको दिख रहा है स्टेटमेंट 3 तो करेक्ट है, उसमें कुछ ऐसा है नहीं जो आपको गलत लगे। ठीक है, न्यूट्रिशन अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क इज होस्टेड बाय ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट। ठीक है, फिर ये है न्यूट्रिशन ग्रोथ इज एन एनुअल। अगर एनुअल होता तो कभी तो आप सुनते। ठीक है, बट आप अगर 2-3 साल से प्रिपेयर कर रहे हो तो यू हैव नॉट हर्ड ऑफ इट। आई होप यू हैव नॉट हर्ड ऑफ इट। बट एनुअल होता तो आप पक्का कहीं ना कभी तो सुनते ही। ठीक है, देन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंडर, दैट इज अगेन अ क्वेश्चन। सो दिस इज रॉन्ग, मैंने बोला भी है कई बार कि जनरली द इंस्टीट्यूशन गिवन आर रॉन्ग। ठीक है, 90% टाइम्स। कार्बन डॉट्स आर वाटर insoluble and offer tunable fluorescence emission and excitation. अब ये insoluble है soluble पता नहीं। Carbon dots can be used as a nano carrier for gene delivery to the retinal cells. Carbon quantum dots are promising antibacterial agent for the treatment of some microbial infections. ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। आंसर इज 2 and 3, बिकॉज यहाँ पे तुमको कुछ गलत दिख नहीं रहा है। कार्बन डॉट्स बेसिकली नैनो पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, कार्बन डॉट्स नैनो पार्टिकल्स होते हैं, तो जीन डिलीवरी आप आराम से कर सकते हो उनसे रेटिनल सेल्स के लिए। Carbon dots are promising antibacterial agent for treatment of some microbial infection. This is also correct. This is also correct. This is also correct if it has been soluble. Carbon dots are water soluble. Moving on. Question 16. Tissue engineering के ऊपर question है. Viable tissues are formed when cells are placed on the tissue scaffolds. ठीक है, correct. Normal चीज है. I hope you guys know this. Carbon nanotubes can be used in tissue engineering scaffold since they are resistant to biodegradation and are non-toxic. गलत हो गया। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी के साथ सबसे बड़ा चैलेंज आज यही है that these are generally toxic in nature. ठीक है, these are generally toxic in nature. At that scale they become sometimes toxic. तो आंसर 2 गलत, स्टेटमेंट 2 गलत हो गया।
Hydrogels are preferred as bioinks for 3D bioprinting since they mimic cell extracellular matrix. करेक्ट है, ठीक है। ऐसे ही स्टेटमेंट था, जैसे हाइड्रोजेल का एक स्टेटमेंट दिया ना, ऐसे ही एक स्टेटमेंट से यूपीएससी ने लास्ट ईयर क्वेश्चन जो पूछा था वो ऐसा ही स्टेटमेंट में से वो कीवर्ड दे रखा था। सो दीज कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन नैनो ट्यूब्स हो गई, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा हाइड्रोजेल्स। अब हाइड्रोजेल को थोड़ा और डिटेल में प्रिपेयर करो, इसमें स्कैफोल्ड्स को और थोड़ा डिटेल में प्रिपेयर कर लो। Bioengineered cornea implants made of collagen derived from pig skin is an example of tissue engineering. Yes, correct. So answer would be 1, 3 and 4. ठीक है, तो आंसर में कहीं नहीं दे रखा है, 1, 3 and 4 नहीं दे रखा है कहीं। ओके, 1 and 3, 3 and 4। शेड्यूल 1 पढ़ो फिर से। वाइबल टिश्यूज आर फाउंड व्हेन सेल्स आर प्लेस्ड, ये तो सही है, तो 1 होना ही चाहिए आंसर में, तो बी हो जाएगा फिर तो। 4 में क्या गलती है? Bioengineered cornea implants made of collagen derived from pig skin is an example of tissue engineering. ये भी सही है यार। खैर, प्लीज गाइस सी स्टेटमेंट 4, फिर थोड़ा देख लेना, आप सर्च कर लेना। मेरे हिसाब से आई थिंक आंसर शुड बी 1, 3 and 4। या तो मैंने कुछ बनाने में गलती कर दी, तो बनाया काफी पहले था। तो प्लीज रीड मोर ऑन स्टेटमेंट 4। आई फील दैट स्टेटमेंट 4 इज करेक्ट। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 17। Which of the following is best explained using the concept of horizontal gene transfer? ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। एक होता है वर्टिकल जीन ट्रांसफर, तो डिफरेंट उसमें, हॉरिजॉन्टल होता है सेम उसमें, ठीक है। अब देखते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ डीएनए फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दैट इज वर्टिकल, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए ऑफ पेरेंट्स अमंग द ट्विंस, ठीक है, दैट इज ऑल्सो वर्टिकल, पेरेंट्स का ट्विंस में। स्प्रेड ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया is actually something called as horizontal. Extraction of specific genes from the bacteria in lab. So the correct answer is C. ठीक है, काफी बार द हिंदू में आ रखा है ये हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर का कंसेप्ट, एएमआर के लिए, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के को एक्सप्लेन करने के लिए हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। सो यू कैन रीड मोर ऑन दिस। कॉमनली रिपोर्टेड ई कोली, दिस इज ई कोली, एंड सैल्मोनेला एसपी, विवरियो एसपी आर स्पीसीज ऑफ, अब ये तो पता होगा आप सबको, आई होप, ये तो बेसिक है। ऑल दीज आर बैक्टीरियाज, ठीक है। इजी क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन आसान है, ये क्वेश्चंस बोथ ऑफ देम हॉरिजॉन्टल एज वेल 17, 18 दोनों आसान क्वेश्चंस हैं। मूविंग ऑन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रो वायरस? ठीक है, नहीं पढ़ा है तो एटिमोलॉजी लगाने की कोशिश करो, पढ़ा है तो बहुत अच्छा है, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप नहीं पढ़ा होगा। इट इज अ duplo DNA viria virus that infects and replicates within the bacteria and archaea. It is a negative strand RNA virus commonly found in horses. It is a virus genome that is integrated into DNA of a host cell. It is a virus that can leave behind physical fossil. ठीक है, अब देखो प्रो वायरस, ठीक है, स्टेटमेंट 1 देखो, इट इज अ डुप्लो डीएनए विरिया वायरस दैट इन्फेक्ट्स एंड रेप्लिकेट्स विद इन बैक्टीरिया एंड आर्ची, ठीक है। सो इस तरह का एक वायरस हो सकता है, बट वाई देन दैट वुड बी नोन एज प्रो? It is a negative strand RNA virus that commonly found in horses. Again, why would you call that pro virus? It is a virus genome that is integrated into DNA of a host cell. So this is not a virus but a virus genome that is integrated into DNA of a host cell. Statement C को देखो, look at statement D also, तो ये तो नहीं है, मतलब gut feeling से दिख रहा होगा आपको। It is a virus that can leave behind physical fossils, ठीक है। So this could be answer because there has to be some reasoning to the use of this word pro. ये तो पता है अपने को that it is a virus, but why we are calling it pro virus? So ये तो ऐसे हो सकता है कि बहुत सारे वायरसेस जो है वो फिजिकल फॉसिल्स नहीं छोड़ के जाते हैं,
So is it that in that sense I'm saying it is a provirus, or it is a virus genome that is integrated in the DNA of the host cell? Because यही तो सबसे important in the whole life cycle of the virus. This step is the most important step. ठीक है? Okay. This integration of the virus with the host cell is the most important event or most important process for a virus to survive in the host cell. So you can call it pro in that sense also. So you have to choose between C and D. ठीक है, आप अपने हिसाब से चूज करो. 50-50 तक आप एलिमिनेट करके पहुंच सकते हो अगर कोई चीज नहीं आती है या एटिमोलॉजी या कुछ ट्रिक व्रिक लगा रहे हो, पर उसके आगे आपको खुद ही चलना होगा. मूविंग ऑन. In which of the following is nanofiber useful? The correct answer to this question is C. ठीक है. Moving on. In which of the following is nanofiber useful? So you can see 2-3 questions from nano technology have been asked. Production of the masks, yes, बिल्कुल हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता? Removal of VOC from the atmosphere, yes, बिल्कुल हो सकता है. Optical sensor, lithium batteries, drug delivery. पहले तो एक और दो आई एम वेरी श्योर तो उनको कर लेता हूँ, ये चलेगा. अब आ जाते हैं यहाँ पे 1 2 4 5 1 2 3 4 5. ऑप्टिकल सेंसर्स क्यों नहीं यूज हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, सबके सब में हो सकता है. तो प्रोवायरस, ठीक है. You can use a nanofiber in optical sensors, na? Why have microbial mats assumed significance in recent times? Why have microbial mats assumed significance in recent times? तो पहले microbial mats का मतलब समझ आना चाहिए. एक artificial या natural mat जिस पर live organisms, ठीक है, biota exist कर रहा है. तो why they have assumed significance? So they are generally found naturally in oceans, और वैसे आप artificially you can grow them in the lake also. They have sediments which are rich in the metallic ore resources. Yes, इसीलिए आप सोचो कि ओशन में जो माइक्रोबियल मैट्स होंगे, वहां पे बहुत सारा ओशन में जो हम डंप कर रहे हैं, तो वहां पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो ओशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. दे विल ऑब्वियसली बी डूइंग समथिंग विद दैट. ठीक है, उसको हम यूज कर सकते हैं. Then they have ability to purify water and toxic waste. They aid reef building. ये तो गलत हो गया साफ साफ. ठीक है, माइक्रोबियल मैट्स का रीफ बिल्डिंग से कोई लेना नहीं. They help to preserve soft bodied fossils. ठीक है, अब देख लेते हैं. So I think they have sediments which are rich in metallic ore resources. They have ability to purify water and toxic wastes. Obviously क्योंकि माइक्रोबियल मैट्स को आर्टिफिशियली हम क्यों यूज करते हैं? बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली, कि अपन जो है उसको वहां रख देंगे तो ऑब्वियसली जो जितना भी टॉक्सिक कंटेंट है उसको दी माइक्रोब्स विच आर देयर, तो हम वो माइक्रोब्स जो है उसको क्लीन कर देंगे. सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. देन यू हैव स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग. 3 इज रॉन्ग, सो दिस इज गॉन. स्टेटमेंट 1 and 2 इज करेक्ट, सो आंसर हो गया सी. दे हेल्प टू प्रिजर्व सॉफ्ट बॉडीड फॉसिल्स. ठीक है, that is also correct, I would say. So answer should be 1 2 and 4 probably. They have sediments which are rich. What is the answer given in the answer key? Please tell me. D. Answer is D. 2 and 4. D दे रखा है. Okay. Why not 1? What is wrong with 1? They have sediments which are rich in metallic ore resources. What is wrong with the statement 1? Okay, so I'll look at it. ठीक है, and जो भी होगा I'll let you guys know. ठीक है, just let me write it. Question number 21. ठीक है, anyways, moving on. Consider the following organisms. So you have some organisms. Which of the organisms animals given above are generally known to show burrowing behavior? ठीक है,
सो व्हाई दिस क्वेश्चन अगेन PYQs में ये दे रखा है, ठीक है। बरोइंग, दिस वर्ड इज मेंशन्ड इन द PYQ 2021 में ही दिस वाज मेंशन्ड। सो बरोइंग मतलब समझ गए होगे आप लोग। तो इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन फॉर बरोइंग बिहेवियर? लेट अस लुक एट द माइस। आई होप ये तो सबको पता होगा, सो वन तो आंसर में होना ही चाहिए। देन ग्राउंड हॉग्स, डू नॉट नो। स्पाइडर्स, डोंट नो। पेंगोलिन्स, ये भी सबको पता होगा आई होप, ठीक है। सो 1 and 4 आंसर में होना चाहिए, सब में है, नॉट हेल्पिंग मी। देन रैकून्स, आई होप ये भी सबको पता होगा दैट रैकून्स आर नॉट नोन फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। रैकून्स तो सिर्फ बेसिकली बरोइंग बिहेवियर क्यों दिखाया जाता है, जनरली जो आपका आपके जो इको सिस्टम होता है उसमें जो आपसे ऊपर लाई करता है, जो आपको हंट कर सकता है, उनसे बचने के लिए, ठीक है, या जो एक्सट्रीम कंडीशंस है उनसे बचने के लिए, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज, 6 को हटा दो बस, आंसर इज सी। Which one of the following statement best describes enhanced kinetic impact? ठीक है, so this some enhanced kinetic impact sometimes seen in news, ठीक है। तो अगेन इफ यू आर नॉट रीडिंग द हिंदू या एक्सप्रेस तो फिर दिक्कत होगी आंसर करने में, क्योंकि इस तरह के कीवर्ड्स आर जनरली नॉट कवर्ड इन दी PT 365। ओके, सो enhanced kinetic impact sometimes seen in the news, a method of hard landing on the asteroids found in deep space, ठीक है। ओके, हो सकता है, मतलब देखा जाए तो इट इज एक्सप्लेनिंग इट कि खैर, द टेक्निक विच ऑल्टर्स द ऑर्बिट ऑफ एन एस्टेरॉइड बाय क्रैशिंग इनटू इट। तो अब देखो, एक चीज मैंने बता रखी है कि दो अगर ऑप्शंस में थीम सेम है तो 90% टाइम आंसर वहीं से आता है। तो दो में एस्टेरॉइड की बात हो चुकी है अब तक। एनीवेज, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक टू स्टडी म्यूऑन्स एंड न्यूट्रिनोज, ठीक है। अब ये तो ऑब्वियसली गलत है, आपको दिख रहा है कि म्यूऑन्स को अगर न्यूट्रिनोज को स्टडी करें तो वी डोंट नीड एनी काइनेटिक इम्पैक्ट, बिकॉज हमारे पूरे अर्थ में देयर आर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ म्यूऑन्स एंड न्यूट्रिनोज तो छोड़ देते हैं, म्यूऑन्स जो लगातार हमारे अर्थ पर गिर रहे हैं, तो यू नो इट, ठीक है। थेनी जो जगह है वहां पर जो कुछ भी चल रहा है, ठीक है, इंडियन न्यूट्रिनो जो ऑब्जर्वेटरी बनाने की हम बात कर रहे हैं। एनीवेज, तो सी इज रॉन्ग, आई होप यू गाइस नो। रिसेंटली डेवलप्ड टेक्निक फॉर हाइपरसोनिक मिसाइल्स, अब ये रिसेंटली अगर हुआ है तो पता नहीं, देन यू शुड बी नोइंग इट, ठीक है। एनीवेज, सो द करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है। आप जनरली न्यूज में पढ़ते होंगे एस्टेरॉइड डिफ्लेक्शन, ठीक है, अर्थ को बचाने के लिए एस्टेरॉइड डिफ्लेक्शन करना पड़ता है, उसके लिए दिस इज दैट। सो द करेक्ट आंसर इज ए। ओके वेट, which alters orbit, B, not deep space, sorry। so the correct answer is B। बेसिकली जो एस्टेरॉइड अर्थ की तरफ आ रहा है उसको अर्थ से हम डिफ्लेक्ट करते हैं, दैट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट, ठीक है। वी डिफ्लेक्ट इट, ठीक है, वी डिफ्लेक्ट इट कि वो अर्थ की तरफ ना आए। एंड हाउ इट कैन बी डन इज कि अब काइनेटिक इम्पैक्ट में और एनहांस्ड काइनेटिक इम्पैक्ट में ये होता है दैट वी बेसिकली सेंड समथिंग और उसमें क्रश करते हैं और उसकी ऑर्बिट को चेंज कर देते हैं, सिंपली द कंजर्वेशन ऑफ बेसिक लॉज इन फिजिक्स। मूविंग ऑन, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा है जैसे लास्ट ईयर पूछा था फ्रैक्शनल ऑर्बिटल वाला। एनीवेज, मूविंग ऑन, which of the following options is listing some of the missions sent to Mars, ठीक है। अगेन बहुत न्यूज में रहते हैं ये सब मिशंस, मैगलन, मैसेंजर, बाइकिंग, अपॉर्चुनिटी, होप, त्यानन, ठीक है, ये आंसर हो गया, आई होप यू गाइस नो, ठीक है, अपॉर्चुनिटी, होप एंड त्यानन। मूविंग ऑन, in artificial insemination process which of the following is are introduced into the uterus of the female, पता है ये आपको, ठीक है। तो बाहर जो होता है, सो बेसिकली पहले तो ये क्वेश्चन क्यों आया, मोटिवेशन समझो। ART was in news एक्ट, ART एक्ट was in news, ठीक है। तो ART एक्ट को कवर करना है, साथ में उस प्रोसेस को भी कवर करना है, ठीक है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 26, which of the following is are cited by the scientists as evidences for continued expansion of universe, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स की जो थ्योरी है उसमें से इनमें से कौन सा
is an evidences for continued expansion of the universe. Detection of microwaves in space, how does it help you? But observation of redshift phenomena in space, movement of asteroids in space, but how does it help you? Occurrence of supernova explosions in space. ठीक है, तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है. ठीक है, आई होप यू गाइज नो कि ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन भी है. ठीक है, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन भी है. So movement of asteroids in space, how does it help you in understanding the expansion of universe? It doesn't help you. So 3 is gone. Now 3 is gone, so 4 is also gone here. Gone. Now observation of redshift phenomena in space. ठीक है. So this is one good. This basically explains the expansion of universe. ठीक है, कि जब जैसे जैसे वो एक्सपेंड होके दूर जाता जाएगा तो वहां से जो लाइट जो है बेसिकली होता क्या है कि अगर दो पार्टिकल्स इफ दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, तो द वेवलेंथ ऑफ लाइट which is registered by one with respect to the second, there would be a change in that wavelength. So Doppler effect जैसे आप बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा जनरली. जैसे बेसिक एग्जांपल देता हूं, आप मान लो खड़े हैं, ठीक है, और बहुत दूर से एम्बुलेंस आ रही है, तो पहले जब दूर होगी तो ट्यूं ट्यूं ट्यूं, जैसे पास आई ट्यूं 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 ट्यूं, फिर दूर जाती आएगी तो वापस वो जो साउंड है वो क्या हो जाएगा, दो साउंड्स के बीच की जो समय होगा वो बढ़ जाएगा, जैसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. ठीक है, तो ये नॉर्मल डॉपलर इफेक्ट इन साउंड है. इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द रोड एंड इफ यू सी एन एम्बुलेंस कमिंग फ्रॉम अ वेरी डिस्टेंस एंड क्रॉसिंग यू, तो यू विल सी कि दूर से वो पास आएगी तो उसकी ट्यू ट्यू की जो आवाज करने की वो है वो फास्ट हो जाएगी, यानी फ्रीक्वेंसी उसकी जो आप रजिस्टर कर रहे थे जब वो दूर थी और अब आप रजिस्टर कर रहे हैं जब वो पास है. एक आप भी मूव करें और वो भी मूव करें, दोनों केसेस में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो अलग होगी. वो कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी तो हो गया फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट, बट जनरल ऑब्जर्व कैसे कर सकते हो कि भाई वो ट्यू 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 एंड ट्यू 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 पास आती है तो फास्ट हो जाती है. ये होगी फिजिक्स. ऐसे ही यहाँ पे भी होता है. ठीक है, दिस फिनोमेना ऑफ रेड शिफ्ट इज नथिंग बट द सेम थिंग ओनली कि जब पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो वहां पर जो वेवलेंथ रजिस्टर्ड बाई wavelength of the light registered by one particle with respect to another particle, that will change. तो रेड शिफ्ट अगर देखने को मिलेगा, that means if these particles are going away from each other, then only red shift would happen. वरना पास आएंगे तो ब्लू शिफ्ट would happen. ठीक है, एंड रेड शिफ्ट देखने को मिला, इट मींस वो दूर जा ऑफ द यूनिवर्स. एंड दिस शिफ्ट, रेड शिफ्ट जो डेल्टा लैम्डा होती है, that actually lies in microwave region. That is why the detection of microwaves in the space is also the answer of this question. Answer is 1 and 2. So I have tried to explain. Moving on. Question number 27. Which of the following is are explained, observed by with the help of concept of gravitational lensing? ठीक है. Spotting the oldest and furthest star in the universe. Merger of two giant black holes. Explain gravitational lensing के द्वारा कौन किया जा रहा है? So gravitational lensing का मतलब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए. ठीक है, आइंस्टाइन रिंग एंड gravitational lensing का मतलब क्या होता है? Distribution of dark matter in the galaxy. Yes. Bending of light in space is explained by what? Simple general theory of relativity, GTR. ठीक है, no gravitational lensing is involved there. ठीक है, बट अब कहने के लिए तो हम कह सकते हैं, क्योंकि जीटीआर का थोड़ा आंसर बनाएंगे वो तो कोड में तब देखेंगे, बिकॉज इनडायरेक्टली तो कह ही सकते हैं. ठीक है, एनीवेज अपन कोड में बना के देखते हैं. सो 3 इज करेक्ट, तो ये चला गया पहले, तो नाउ ये चला गया. नाउ आई हैव टू ऑप्शंस, 2 3 एंड 1 3 एंड 4. ठीक है, मर्जर ऑफ, ठीक है, कहां से आपको ग्रेविटेशनल वेव्स देखने को मिलती है. सो इट हैज नथिंग टू डू विद ग्रेविटेशनल लेंसिंग. तो 2 चला गया, तो 2 चला गया, तो ये भी चला गया. आंसर बचा अपने पास सी. इसलिए मैं बोल रहा था कि आंसर को बना के देखते हैं कोड में, क्योंकि वेदर द एग्जामिनर हैज यूज्ड दैट, जो मैं बता रहा हूँ कि बेंडिंग ऑफ लाइट रेज इज नॉट दैट ग्रेट एक्सप्लेन यूजिंग ग्रेविटेशनल लेंसिंग. ठीक है, बट देन अगेन इफ द एग्जामिनर हैज काउंटेड दैट और नॉट, इट इज बेसिकली एक्सप्लेन बाय जीटीआर. तो मैं ये बोल सकता हूँ, बिकॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ द लाइट रेट आई सिंपली ऑब्जर्व ग्रेविटेशनल लेंसिंग, नॉट द वे राउंड, बट देन it is given in the
ऑप्शन, तो वो लेना पड़ेगा 1, 3 and 4. So gravitational lensing, please guys read more on this. ये एक important topic है इस साल के लिए. Gravitational lensing is important for this year. Moving on. I don't know what do we call this. Cleanest river in Asia acts as a natural barrier between which of the following two hills? ठीक है? I don't know answer इसका. Please go and see for yourself. बस मुझे इतना पता है कि ये तो कहीं मेघालय में है, बट द प्रॉब्लम इज गारो खासी खासी जनता ये सब मेघालय में ही है. मिजो वाले ऑप्शन सी को मैं मैक्स टू मैक्स यहाँ पे एलिमिनेट कर सकता हूँ. ठीक है, जयंतिया मेकर भी एक दूसरे के पास नहीं होंगी, तो इनमें से कोई आंसर होगा. सर बी आंसर इसका. ओके, आंसर इज बी. ओके, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया के बारे में कुछ दे रखा है, सो आसान क्वेश्चन है, आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स constitutional bench of Supreme Court made the rarest of the rare principle in award of the death penalty was first laid out? अभी तो बहुत फेमस जजमेंट ऑफ बच्चन सिंह है, आई थिंक. सो आंसर शुड बी ए. इट वाज इन न्यूज रिसेंटली, इसलिए पूछा गया है. आर्टिकल 32 आराम से आप कर सकते हो. इट प्रोवाइड्स रेमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. यस, दैट इज व्हाट इट डज. ठीक है, करेक्ट है ये. इट इज पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट. यस, सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज अ पिटिशन. यस, प्रोटेक्शन यूनिट आल्सो अप्लाइज टू एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ व्हिच इज नथिंग टू डू. गलत है, आंसर हो गया डी. स्ट्रिक्टली आर्टिकल 32 strictly follows fundamental rights only. 226 में ये सही हो जाता. एक्ट 2006 के ऊपर क्वेश्चन है, आप खुद से सॉल्व करें. PYQ है, तो आपने खुद ने भी एडिशनल रिसर्च किया होगा, उसके बेसिस पे आंसर निकाला जा सकता है. ठीक है, मूविंग ऑन. व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फॉर समवन who would be watching it on YouTube? What is the answer of this question, guys? सर 32 का डी है सर. Okay. Moving on. Which of the following fundamental rights is available only to minorities in India? आसान क्वेश्चन है ये. ठीक है. Right to establish and administer educational institutions. Yes, this is the answer. कौन सा आर्टिकल है? 29 और 30? This is Article 30. Supreme Court judgment. Article 30 is specifically mentions sort of minorities. Article 29 talks about a section of citizens. That is why 29 is not strictly for minorities, but 30 is strictly for minorities. Supreme Court judgment also given in Lakshmikant. The ultimate, so this one, distinct culture, Article 29. Article 29. And deny entry to other citizens. No, you can't deny entry to other citizens. The ultimate goal of the introduction was to educate that apart from the rights, they also have to fulfill some duty. Answer is D. It was as it is mentioned by the Suren Singh committee. ठीक है, तो वही तो उन्होंने जो गोल निकाला है वही आपको फॉलो करना है, ना कि जो आप लक्ष्मीकांत हिंदू एक्सप्रेस में पढ़ के अंडरस्टैंड करते हो. ठीक है, क्वेश्चन जनरली हो जाता है. अभी क्या हुआ, क्वेश्चन चल रहा था ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन पे चल रहा था, तो बहस चल रही है. बट द वर्ड ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन वाज यूज्ड बाय DY चंद्रचूड़ इन सम आई वुड से स्पीच बैक इन 2017-18. ठीक है, so he went to UK and there he gave this speech on transformative constitution. तो उन्होंने जो एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन बताए हैं वही एलिमेंट्स मैटर करेंगे. फिर आप अपने हिसाब से नहीं बना सकते कि नहीं ये भी ट्रांसफॉर्मेटिव है वो भी ट्रांसफॉर्मेटिव है. सुप्रीम कोर्ट ने जो उस वर्ड को फिर वहां से पिक किया एंड फिर जजमेंट्स में यूज किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो निकाला है वही ट्रांसफॉर्मेटिव होगा. आप अपने मन से नहीं बता सकते. ठीक है, तो अल्टीमेट गोल वही होगा जो स्वरण सिंह कमिटी ने बताया है. So that is D, not what you feel. Which of the following is the bulwark of a democratic government? Repetition of the theme. क्या बता सकता है कोई? Bulwark.
A. Freedom ये of बहुत आसान speech है. and expression. A. Sir, A. Yes. Right to dissent. This was again the statement by D.Y. Chandrachud only, that freedom of speech and expression and hence right to dissent is a bulwark of democratic government. On which of the following items the state governments have the exclusive power to levy taxes? Exclusive to levy taxes. Supply of goods in the course of the import or export, agriculture income, land revenue, excise duty on tobacco. अभी रिसेंटली आपको पता है टबैको पे किसने लगाई है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाई है, इसी बजट में लगाई है. So this is not exclusive. 4 चला गया. Look at 1. Supply of goods in course of import export. कौन गया? पता है आपको. So this is also by the central government. Answer would be 2 and 3. ठीक है. Which of the following statements correct about ग्राम न्यायालय? खुद से आप सॉल्व कर सकते हैं, फिर मैं बता देता हूँ. Shall try only civil judgments? No. Petty criminal cases भी वो डिसाइड कर सकते हैं. They shall be no appeal. No. उसके लिए अपील का सिस्टम भी बन रखा है. Who among the following was the Viceroy of India during the second round table conference? Why this question? Because first से second आते आते चेंज हो गया था. बता सकता है क्या है इसका आंसर? Sir, Lord Irwin. चलिए, तो फिर मैं ये बोलूंगा कि सेकंड के बाद चेंज हो गया, कि लॉर्ड इरविन तो गांधी जी को मना के लेके ही गए थे ना. देख लेना यार, चेंज गड़बड़ ना हो जाए कहीं, क्योंकि किसी एक में चेंज हो गया था. आई रिमेम्बर. एनीवेज, मूविंग सेकंड ऑन. वाला में ही हुआ था. क्वेश्चन 30. अच्छा. द इस्तांबुल कन्वेंशन, लंदन कन्वेंशन, बाली एक्शन प्लान, वियना कन्वेंशन. आपको दे रखा है हाउ मेनी पेयर्स गिवन आर करेक्टली मैच्ड. ठीक है, तो क्या है? इस्तांबुल कन्वेंशन, लंदन कन्वेंशन आई होप सबको पता होगा. दिस इज रिलेटेड टू मारपॉल. ठीक है. बाली एक्शन प्लान बताओ भाई. Disaster management, no? Disaster risk management. तो एक तो ये करेक्ट है. अच्छा, इसमें हाउ मेनी पेयर्स हो रहे हैं, देखा, एलिमिनेशन को एलिमिनेशन कर दिया, तो 2 करेक्ट है. वियना कन्वेंशन, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज, तो ये तो गलत हो गया. ठीक है. देन यू हैव ह्यूमन राइट्स of prisoners of war, so this is correct. Yes, Istanbul Convention. Biodiversity, this is also wrong. So the answer is 1 and 2 are correctly matched. That is only 2. Moving on. Which of the following statements concerning the natural vegetation of India is not correct? Sal is found in the most deciduous forest. Okay. Casuarina is largely found along the coastal region of the Tamil Nadu. Deodar is coniferous species of tree. ये तो correct है. ठीक है. साल इज फाउंड इन मॉस, ये भी करेक्ट है. शोला फॉरेस्ट आर फाउंड मेनली ऑन द, ये गलत है, एब्सोल्युटली गलत. सबको पता है ये कहाँ पाए जाते हैं, नीलगिरीज में पाए जाते हैं. ठीक है. अब ये तो इजी क्वेश्चन हो गया, अब ये भी गलत हो रहा है तो फिर कैसे चलेगा? कंडीशन द ऑक्लूडेड फ्रंट्स आर क्रिएटेड. अब आप कर सकते हैं इसको. अब तो आपके पास स्पेशली यू गाइस हैव दैट पीडीएफ आल्सो, माय नोट्स पीडीएफ, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हर एक ज्योग्राफी के ज्यादातर क्वेश्चंस वहां से हो जाएंगे, बिकॉज भाई एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनाती है यूपीएससी. एनसीईआरटी उसमें है कवर्ड. मूविंग ऑन. Question 42. Both state and central government can issue directions to monitor, decrypt any information generated stored in any computer resources. सही बात है. ठीक है. क्यों न्यूज में आपको पता होगा कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही दे आर क्रैकिंग डाउन ऑन जर्नलिस्ट, और सबसे पहले क्या करती हैं, उनके फोन को छीन लेती हैं, विच इज अ राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है. इसी पे केस लड़ा जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट में आया अभी रिसेंटली कि बीबीसी के लोगों का आपने फोन कैसे छीन लिया. ठीक है. यही जजमेंट चलेगा काफी दिन के लिए, बिकॉज फोन जो है बेसिकली वो तो एक प्राइवेट चीज हो गई. जस्ट टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द केस, यू आर ऑल्सो कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन जिसका आपको कोई हक नहीं है. दैट इज हाउ द केस इज बीइंग डिस्कस्ड, नॉट माय ओपिनियन. Intermediaries can claim the safe harbor of not being responsible for content they host. Yes, यही safe harbor clause है. Both of them are correct. Viceregal lodge at Simla. Repeated question. Moving on.
Which one of the following was not an attribute of Samudragupta described in the Prayag Prasasti? Who wrote Prayag Prasasti? Quickly tell me. Hari Sen. Hari Sen wrote. In which language? Sanskrit. Sanskrit. ओके, देख लेना, मुझे भी नहीं पता, देख के बताओ कोई। संस्कृत प्रकृत किसमें लिखा था? संस्कृत आ रहा है सर। संस्कृत है। संस्कृत ही है। कंपोज स्टाइल इज चंपू काव्य स्टाइल। ठीक चंपू तो हम इसको डेरिवेटरी सेंस में यूज करते हैं पर इंग्लिश। तो चंपू स्टाइल में ये सब पूछा जा सकता है, इसलिए पूछ लिया मैंने तुमसे ना। एंड दिस इज हाउ बेसिकली यू आल्सो डू विद अदर पेपर्स कि एसोसिएटेड चीजों को टटोलने की कोशिश करो, जिससे कि तुम्हें थोड़ा हेल्प मिले। कल को जो है एडिशनल रिसर्च करते हैं ऐसे ही। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति वाज रिटन बाय हरिसेन इन संस्कृत इन चंपू स्टाइल, इलाहाबाद पिलर पर। ठीक है, नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ समुद्रगुप्त। शार्प एंड पॉलिश्ड इंटेलेक्ट, अकम्प्लिश्ड स्कल्पटर्स, फाइन म्यूजिकल परफॉर्मेंस। एटलीस्ट ये तो पता होगा कि ये करेक्ट है, क्योंकि वो वीणा वाले जो वो होते हैं इनके कॉइन्स, दे वर वेरी फेमस। पोलिटिकल टैलेंट ऑफ जीनियस। ठीक है, अब देखो, कोई भी राजा के बारे में आप ज्ञान बकोगे तो चाहे वो 10वीं फेल राजा क्यों ना हो, बट उसको ये वाली प्रॉपर्टी दे दोगे कि हाँ भाई ये तो है आपके अंदर। ठीक है, चाटुकारिता ऐसे ही तो करते हैं, वाह वाह मजा आ गया, वाह जी वाह। ठीक है, देन अब ऑप्शन ये बचता है कि पोलिटिकल टैलेंट था कि नहीं था, या वेदर ही वाज एन स्कल्प्टर। सो बी और सी में से आपको, बी और डी में से आपको चूज करना है। तो फिर यहाँ पे थोड़ा तो मानने वाली बात है। तो मैं डी मार दूंगा, क्योंकि अगर वो पॉलिटिकल टैलेंट होता उनके अंदर तो 2-4 किताबें भी लिख जाते, पर ऐसा तो नहीं हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 45। क्वेश्चन 45 कह रहा है, विजयनगर एम्पायर, द किंग्स claimed to rule on behalf of God Virupaksha. I hope you guys know this is correct. Rulers use the title Hindu Surtrana to indicate their close links with gods. तो पहले वन करेक्ट है, तो ये चला गया। All royal orders were signed in कन्नड़, संस्कृत, तमिल। ठीक है, सारे ऑर्डर्स जो है इनमें वो करना। ठीक है, कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा, सोचो कि all of them are signed in this, somewhere in this तो भी चलता। So all cannot be true. Royal portrait sculpture was now displayed in temple. Yes, ये भी आई होप आपको 1 and 4 तो एटलीस्ट बेयर मिनिमम आपको पता ही होगा। सो 1 and 4 आंसर में होना चाहिए पहली बात तो। सो आंसर हो गया डी। वैसे भी ट्रिक से भी हो रहा है, ऑल वाली बातें हमेशा गलत होती है। और अब अच्छा बताइए, विजयनगर एम्पायर की जो 4 डायनेस्टी थी, कोई बता सकता है कौन कौन सी थी? 3, माफ कीजिएगा 3। Sangam, Sulabh, 4, right? Sangam, Sulabh, Tulab and उससे Araviti. पहले कौन सी थी? Sangam. संगम। आखिरी कौन सी थी? Sangam. पहली कौन सी थी? पहली संगम थी और लास्ट में संगम। अराविडू थी। Araviti. SSTA Yes. SSTA है ना? हाँ। अरे Yes. SSTA है ना, यही तो मेरी शॉर्ट फॉर्म बना रखी है। संगम टिल्वा एंड अराबी। ठीक है, अच्छा, और हरी बुक का याद होगा आपको, उन्होंने इसको सेटअप किया था इंग्लिश में। कहाँ से इमर्ज हुए थे? वेयर डिड दे इमर्ज? बता सकता है कोई? विजयनगर की जो एम्पायर था, इट वाज कार्व्ड आउट ऑफ सम अदर। कौन था वो इनसे पहली डायनेस्टी? ये याद करना है भाई, आजकल यूपीएससी ऐसे ही पूछ रही है। क्या नाम था उनका?
काकतिया से थी क्या उन लोग की? कतिया से तो नहीं होगी यार, सी से कुछ नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा। ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट आएगा तो बता दूंगा ये करेक्ट है कि रॉन्ग है। Anyways, देख लेना। The main dispute between Digambar and Shwetambar sects was due to emphasis on which of the following? तो बताओ इसमें से क्या पता। डिसिप्लिन एंड हार्ड लाइफ, यस एब्सोल्युटली यही आंसर है। इसी को लेके वो लड़ रहे थे, हम तो इतना ज्यादा डिसिप्लिन रखेंगे, हम नंगे रहेंगे। तो बोले नहीं भाई, नंगा रहना तो सही नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा, ये तो एस्थेटिक सेंस ऑफ लिविंग में नहीं आता। बोले तो तुम जाओ अलग, हम चलते हैं अलग। Because the following pillars, how many of these have lion as animal on the capital? तो प्लीज आप इस क्वेश्चन को कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लायन की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई, तो आया था मेंस में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लायन का क्या जो है सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो प्री में भी ये पूछा जा सकता है। अशोका और उनसे रिलेटेड जो कैपिटल्स हैं उसमें लायन कहाँ कहाँ यूज हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऑल दिस ने हाउ मेनी पूछ रखा है, बट फिर भी लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट। लौरिया नंदाघर, यस। रामपुर, यस। आई थिंक सांची नहीं है। ठीक है, सांची नहीं है आई थिंक। ठीक है, संकिसा, यस। आई थिंक 3 होगा इसका आंसर। क्या सी है क्या इसका आंसर? यस सर। ओके, और देख लेना प्लीज गाइज, देख लेना कहाँ कहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जगह पे बुल है। एनीवेज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरल न्यूज़पेपर इज नॉट एसोसिएटेड विद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? जागृति, मूक नायक तो सबको पता होता है, तो ये तो आंसर नहीं होना चाहिए। बहिष्कृत भारत भी सबको होता है, तो जागृति और जनता में अगेन आई आंसर वुड बी जनता। ठीक है, सर क्या आंसर? जागृति है। शेट यार, तुक्का गलत हो गया। तो ए और डी में से 50-50 में आंसर इज जागृति। मेरा हो गया -2/3। चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन। और थोड़ा डिटेल एक एक लाइन पढ़ लेना इनके बारे में। जैसे जागृति पहले तो किसने निकाली थी, पहले तो करेक्ट आंसर पता होना चाहिए अपनी को एडिशनल रिसर्च में। बाकी मूक नायक कब निकाला था, बहिष्कृत भारत कब निकाला था, और जनता कब निकाला था। ठीक है, 1 line डिटेल इज मोर देन सफिशिएंट, खासकर से हिस्ट्री में। विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following various strategic methods did the British use to gain new territories in India? Support scheme for acquisition of Hyderabad, Khalsa policy to acquire Satara, ठीक है, war to seize the land of the Marathas, capture of the Awadh state in case of mismanagement। तो पहले तो 4 सबको पता है। प्लीज म्यूट। So 4 is correct, ये तो सबको पता है। Then 1 is also very well known, I hope you guys know, 1 is also correct। ठीक है, सपोर्ट स्कीम फॉर एक्विजिशन ऑफ हैदराबाद, तो यू गाइस नो 3 स्टेट वो जो आया था, ट्राई पार्टेट सपोर्ट सिस्टम इन्होंने बनाया था हैदराबाद के लिए। हैदराबाद के साथ मिलके लड़े थे खैर वहां पे, तो ये बट देन दे डिड इट। सो 1 and 4 आंसर में होना चाहिए। अब ये चला गया, ये चला गया। नाउ यू हैव टू चूज बिटवीन बी एंड डी। वॉर टू सीज द लैंड ऑफ मराठास, तो यू नो दैट मराठास के साथ इनका बाद में एंग्लो मराठा वॉर हुए थे। ठीक है, सो आंसर वुड बी डी। मूविंग ऑन, with reference to medieval history, terms like Akhal, Imlak refer to what? ठीक है, Akhal and Imlak were nothing but I think types of lands. I don't know exactly, but I think types of lands. ठीक है, सल्तनत पीरियड में। ऐसे स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब तुम्हें ध्यान देना है कि वॉज इट परमानेंट। एक बार किसी को वतन जागीर बना दिया था, तो वॉज इट परमानेंट कि आप वतन जागीर ही रहोगे, एंड वॉज इट हेरिडिटरी। एनीवेज, टू पनिश एन असाइनी इट कुड बी कन्फेस्टिकेटेड, ये तो सबको पता ही होगा कि जनरली कहीं पे भी आपको दिया जाता है कि अगर आपको पनिश किया जाएगा तो इट कुड बी कन्फेस्टिकेटेड, नॉर्मल स्टेटमेंट। सो 2 हैज टू बी इन आंसर, सॉरी। सो 1 and 4 इज गॉन। टू रिवॉर्ड एन आमिर न्यू वतन जागीर कुड बी क्रिएटेड, सो 2 and 3 एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि आप खराब करोगे तो आपसे कन्फेस्केट कर लेंगे, अच्छा करोगे तो आपको और दे देंगे। सो 2 and 3 आंसर में होने चाहिए, बट इट्स नॉट हेल्पिंग अस।
पार्ट ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ वतन जागर कुड बी गिवन इन इनाम, ठीक है, पार्ट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ वतन जागर कुड बी गिवन इन इनाम, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि रेवेन्यू वो लेके आए जो स्टेट को देना होगा। सो दिस इज नथिंग बट 2, 3, 4, ये तीनों कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो 2, 3, 4 तीनों होने चाहिए आंसर में। क्या आंसर डी है क्या? Yes, sir. चलो, consider the following pairs: Groningen gas fields, Loch Ness, रजाका लेक, और कुछ कुछ जो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। Which of the following pairs are correctly matched? So I hope you guys know Razaka Lake is in Iran, ठीक है। This Zaipor कुछ 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 is in Ukraine. It is a nuclear plant. कौन सी रिवर पर है ये भी देख लेना। नीपर रिवर पर है शायद, डी साइलेंट होता है उसमें। So 4 is wrong. It was in news. This was in news. So 4 is wrong. You see, 4 is wrong. Answer is A. So many people were asking me कि मैपिंग के लिए क्या करें। तो PH के सबसे आखिरी जो हेडिंग होती है उसमें ये सब चीजें दे रखी हैं। ओवर द सारे के सारे मंथ में एक एक करके कंपाइल करके दे रखी हैं जो जो न्यूज में रही हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो बेसिक मैपिंग है वो आप खुद कर सकते हैं, बट जो करंट अफेयर की मैपिंग है वो आप जा सकते हैं। PH में जाइएगा, वहां पे नीचे लास्ट में जो है ये वाले सब चीजें दे रखी हैं जो उस मंथ में न्यूज में थी। तो यू विल फाइंड दिस 4 and 3 both in some compilations. Moving on, which of the following toxic gases are released from sewage waste? हाइड्रोजन सल्फाइड यस, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सभी आएंगे। बट अब इसमें ये देखना और टॉक्सिक कौन सी है कौन सी नहीं है। तो नीचे की दो तो टॉक्सिक नहीं है। सो आंसर वुड बी 1 and 2. Moving on, with reference to coins in ancient period, so coinage in ancient India, you can refer to that. The Satvahan were the first to use the image of goddess Lakshmi on their coins. Why this question? I hope you guys know why this question have been asked. The very great leader of some, okay, you know, Harihar II of Vijayanagar dynasty introduced coins that had images of Shiva Parvati. Shiva was depicted in the coinage system of the Kushan rulers. पता है तो करो, नहीं पता है तो आगे बढ़ो, ठीक है। Moving on, answer is D. ये गलत है। Tell me, सबसे पहले गॉडेस लक्ष्मी को कौन लेके आया था? बता सकता है क्या कोई? अच्छा गैस करो चलो। कुशाना। गुप्ता। गुप्ता देख लेना, मुझे ऐसा याद आ रहा है गुप्तास, देख लेना, ठीक है। Moving on, jurisdiction under increased monitoring are sometimes seen in the news context of FAT. लिस्ट जो चलती रहती है ना वो यही है। तो अब इसको एडिशनल सर्च कैसे करोगे? एक तो फाथ के बारे में पढ़ो थोड़ा, ठीक है, क्योंकि इट हैज बीन इन न्यूज। फिर इसे बोलते हैं ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, ऐसे करके। सो अभी ब्लैक लिस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? क्या पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में है या नहीं है ये, ठीक है। No. बस सर हटा ये दिया। क्वेश्चन हटा, आई नो हटा दिया, मैं बोल रहा हूँ इसलिए याद रखना, ठीक है। ये काम का है। विद्यापति, वल्लभाचार्य, तुकाराम। विद्यापति पदावली ऑन राधा कृष्ण, सही है एकदम। वल्लभाचार्य फिलोसफी ऑफ पुष्टि मार्ग, सही है एकदम। सीधे सीधे नोट्स में दे रखा है मेरे में। तुकाराम का नहीं है, ये गलत आंसर होगा सी, ठीक है। ये नामदेव का है शायद, दासबोध, रामदास। ठीक है। सीधा नोट्स रामदास का, ओके। नामदेव, रामदास और तुकाराम, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा नोट्स में दे रखा है, वहां से आप करें। बोथ डेन्स एंड ब्रिटिश सेट अ फैक्ट्री एट सूरत, नो आइडिया। Portuguese captured Goa from the ruler of Bijapur. Saint Xavier arrived in India with Al-Biruni. अब ये तो एक तो पहली बात ये क्यों पूछा मैंने, बिकॉज ये ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुके हैं, तो इसलिए पूछो कि वो और थोड़ा एडिशनल रीड कर लिया कि भाई ये आया कब था, ठीक है। देन बोथ डेन्स एंड ब्रिटिश सेट अप फैक्ट्रीज एट सूरत। तो ये बड़ा दिक्कत है कि डेन्स के पास बहुत कम फैक्ट्रीज थी और सूरत पे वो कभी नहीं आए थे। सो 1 इज रॉन्ग, ठीक है। सो 1 इज रॉन्ग, इतना पता है तो आपका आंसर सी हो गया। और बोथ वाले जनरली 90% टाइम गलत होते हैं स्टेटमेंट्स। मूविंग ऑन, अशोका's conversion to Buddhism is the content of pillar 13.
नाम बता दो क्या है? पिलर 13 है कि 11 है? अब तो यार मैं भूल गया अशोका पिलर को ना सबको। अच्छा है प्रीलिम्स नहीं दे रहा हूँ। क्या पिलर 13 है ना शायद? देख लेना, नोट्स में है वैसे मेरे में। सो प्लीज रीड। क्या है व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस? बैरत रॉक है क्या? बैरेट। बैरेट। अरे चलो। Akbar set up a private colony for prostitutes outside Fatehpur Sikri. Some women were inducted in troops as female guards with royal seraglio. The acquisition of slave girls by purchase continued throughout the Mughal period. अब देखो, ऐसा है, नहीं पता है, कुछ नहीं आता है, स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करो, सिर्फ इतना तो कर सकते हो। Some women were inducted in troops as female guards, तो इसमें तो कुछ गलत है नहीं भाई। उनकी माताएं बहनें रहेंगी तो उनके साथ तो वुमेन गार्ड्स को ही भेजेंगे ना, तो क्या इसमें कुछ गलत है? नहीं गलत है, तो दो तो सही हो गया। दो सही हो गया तो ये चला गया एक तो, और चला गया ये, तो वन अपने आप सही हो गया। ठीक है, ठीक है। एक्विजिशन ऑफ स्लेव गर्ल्स बाय परचेज कंटिन्यूड थ्रू आउट द मुगल पीरियड, तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। वेयर डिड द नेशनलिस्ट वोकलिस्ट पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर establish his first गंधर्व महाविद्यालय in 1901? So correct answer is Lahore. Why this question has been asked? Because recently he was in news. पंडित रमाबाई, शारदा सदन, महर्षि डी के कार्वे अनाथ बालिका आश्रम, जी के देवधर सेवा सदन, पंटूलू, दिस, तो चार एकदम करेक्ट है। आई होप यू गाइस नो। ठीक है, चार करेक्ट है। सो ठीक है, पंडित रमाबाई, यार और तो याद नहीं आ रहे, वैसे मैंने कंपाइल तो कर रखे हैं, वहीं से उठा के बनाया क्वेश्चन, पर याद नहीं आ रहा मेरे को। देख लेना गाइस खुद से अपने आप इसको, है ना। लास्ट 2 दिन पहले पढ़ने वाली रटने वाली चीजें हैं ये, तो बस एक पेज में लिख रखी है मैंने कौन किससे एसोसिएटेड है। बस 2 दिन लगातार उसको पढ़ लो तो याद हो जाते हैं। Whose open letters on Indian economy to Lord Curzon forced the British government to publish an official rebuttal and also initiate the reforming economic measures? I hope you guys know this. ठीक है, आंसर इज आरसी दत्त। Which of the following statements regarding the ideas propagated by Jyotiba Phule is not correct? His words and action represent a form of universal humanism. अब इसमें क्या ही गलत होगा? आपको पता है ये चीज, कुछ गलत नहीं होगा। Then Phule worked for a new social structure built on equality and rationality. इसमें कुछ गलत नहीं है। Phule not only put himself outside the Brahminic culture system but also outside Hindu society. ठीक है, ये क्वेश्चन है। Phule rejected all Hindu scriptures which legitimize hegemony of the Brahmin class. ठीक है, देखो all वाली बात तो जनरली गलत होती है। ठीक है, so answer is D. Which among the following is incorrect about Vice President of India while he discharges the functions of the President? तो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं इसको। Arrange the following Indian states in the correct chronological order of their formation. ये भी आप खुद कर सकते हैं। GM crops in India. BT cotton is only genetically cash crop that has been approved for commercial cultivation. Correct है? I hope you guys know this. Cry1 AC protein is present in BT cotton as well as BT brinjal development. Correct है? All gene edited products classified as transgenic products? No. Recently only some of the products have been given the exception. So answer 3 wrong हो गया and 1 is correct. So answer is an investment made by an Indian entity which is owned and controlled by NRIs on repatriation basis shall be considered for calculation of Indian foreign investment. I don't know, no idea. RBI's approval is required for transfer of shares from NRI to a non-resident other than an NRI. ठीक है, पता नहीं। Non-resident investors can invest in the specified government securities without being subject to any investment ceilings. ये तो गलत हो गया। I hope you guys know this. Ceilings तो गलत होनी चाहिए जनरली, विदाउट एनी सीलिंग। फिर से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट का करेक्ट, फिर से देख लेते हैं, बहुत ही टफ क्वेश्चन हो गया ये तो। ठीक है, थोड़ा ट्रिक लगाने की कोशिश करते हैं।
फिर से देखते हैं, कोई स्टेटमेंट में मुझे कोई आइडिया नहीं है, so I'll try to now use the trick. An investment made by an Indian entity which is owned and controlled by NRI, Indian entity owned and controlled by NRI on a reputation basis shall be considered for calculation of Indian foreign investment. An investment made by an Indian entity which is owned, controlled by NRI should not be foreign investment. One is wrong. RBI's approval is required for transfer of shares from NRI to non-resident India other than NRI. Answer is D. At least one को तो आप eliminate कर दोगे कि something which is already owned and controlled by NRI, how can that be controlled, that be Indian foreign investment? ठीक है, but it is a tough question guys, very tough question. ठीक है, it's a very tough question. छोड़ देना गाइस, मैं तो छोड़ देता पक्का, इसको गलत हो जाता वरना मैं सबसे पहले तो एलिमिनेट करता 3 को मैं, सब्जेक्टेड टू एनी इन्वेस्टमेंट। पर अच्छी चीज ये है कि 1 को भी आप एलिमिनेट कर पा रहे हो, 3 को भी एलिमिनेट कर दोगे तो सब गलत ही हो जाएगा इसमें। वेरी टफ क्वेश्चन, शुड बी स्किप्ड। मूविंग ऑन, द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल डिस्टेंस इज रिलेटेड टू सेकुलरिज्म, राजीव भार्गव का कॉन्सेप्ट है। नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनाई टाइगर रिजर्व located in 2 states. Okay, then you have, it is habited galat spelling, by indigenous people from Toda community. Anaimalai Tiger Reserve lies north of Palkad Gap in the southern western Ghats. ठीक है, अगेन वेरी टफ क्वेश्चन, चलो अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं कहीं से। इट इज लोकेटेड इन 2 स्टेट्स, आई होप ये तो सबको पता है, आई होप ये तो सबको पता है दैट इट इज नॉट लोकेटेड इन 2 स्टेट्स, तो ये गलत हो गया, नॉट करेक्ट पूछा है ना, तो 1 तो आंसर में होना ही चाहिए। सो दिस इज गॉन एंड दिस इज गॉन। ठीक है, नाउ आप 50-50 लगा लो, जो लगाने लगा लो। ठीक है, टोडा कम्युनिटी कहाँ पाई जाती है, ये भी अगर आप गैस कर लोगे तो भी कर लो, हाँ ये भी गैस कर लोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ ऑफ पल्लक्कड़ गैप, ये कहां पर है, अब ये गैस ही करना है, या तो आपको पता हो, बट आई वुड से कि पढ़ी लो इसको, अनाईमलाई को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मूविंग ऑन, शेल गैस इज फाउंड इन स्मॉल बैचेस एंड डीपर देन कन्वेंशनल क्रूड डिपॉजिट। आई होप ये तो सबको पता होगा, 1 इज करेक्ट। ठीक है, लोअर बारमेल हिल फॉर्मेशन हैज शेल गैस रिजर्व्स। ठीक है, नो आइडिया, 1 इज करेक्ट, इतना पता अभी तक। लार्जेस्ट कोल बेड मीथेन reserves are located in the state of Odisha. Largest in Odisha, that is the question. उड़ीसा में क्यों आएंगे वहां पर? ठीक है, लोअर बारमेल हिल फॉर्मेशन हैज शेल गैस रिजर्व। सो अब अगेन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो गया, बिकॉज यू नो 1 इज करेक्ट बट यू कांट से सर्टेनली कि 2, 3 भी करेक्ट है कि नहीं है। सो ऑल्सो बारमेल हिल फॉर्मेशन में शेल गैस पाना इज वेरी वेरी मतलब एक्सेप्शनल होगा। सो कांट से व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस? आई थिंक 3 गलत हो जाएगा इसमें एक तो, बट आई एम स्टिल कंफ्यूज। हाँ, डी डी आंसर है। डेट अदर डी, ओके ठीक है। सो अगेन दिस आल्सो अ टफ क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि सोचने वाली बात है यहाँ पर भी जो है 2 स्टेटमेंट, मतलब तीनों ही स्टेटमेंट पता होने चाहिए इसलिए आंसर करने के लिए। सो दिस इज अ टफ क्वेश्चन। मूविंग ऑन, इफ अर्थ स्वैप्स इट्स पोजीशन विद मार्स, ठीक है, व्हाट विल बी द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस? ठीक है, मे लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ लिविंग क्रिएचर, तो मे है, सही बात है। अगर नहीं होता तो फिर मार्स में भी हम जी रहे होते हैं, सो आंसर में 1 तो होना ही चाहिए। मूविंग ऑन, डिक्रीज इन लेंथ ऑफ द डे ऑन द अर्थ, ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द प्लेनेट अराउंड सन इंक्रीजेस। अब आपको पता पड़ गया है कि पक्का एग्जामिनर ने इंक्रीज डिक्रीज के साथ खेला होगा, यानी कि 1 के साथ या तो 2 आएगा या 1 के साथ 3 ही आएगा, ये तो पक्का नहीं आएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। दिस इज हाउ दी क्वेश्चंस आर
फ्रेम ना, यही तो मैं समझा रहा हूँ पूरे टीटीएस में। यू हैव टू अंडरस्टैंड द फ्रेम ऑफ माइंड अपार्ट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द ट्रिक्स। अब ये पता करना है कि किसमें खेला होगा, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं अपन ये पता, तो थोड़ा लॉजिक लगाओ। ये सन है, ठीक है, तो सन से सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है बताओ जल्दी? मर्क्यूरी, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे कौन है? विनस। वीनस। वीनस। तीसरे नंबर पे अर्थ, अर्थ। और चौथे नंबर पे मार्स। ठीक है। तो बेसिक आइडिया भी तुम लगा सकते हो चाहो तो, कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा? आई होप समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 72, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Kazakhstan is the largest producer of the uranium in the world. Kazakhstan is the largest producer of uranium in the world. Okay. Uranium deposits occurrences have been reported from Kuduppa Basin in India. ये तो सबको पता होगा, I hope. ठीक है. Uranium is the first mined and later leached as yellow cake. And finally, usable uranium extracted from uranite. Wrong. ठीक है. Usable uranium comes from this. Read more on yellow cake. So 3 is wrong. अभी भी हमारा आंसर हुआ नहीं, ठीक है। Kazakhstan is the largest producer of uranium in the world. This is a very well-known fact if you are reading these papers. ठीक है? If you are reading the newspapers, then you know it. Kazakhstan is the largest producer of uranium, and India very recently have signed some deal with Kazakhstan and also with Australia. Apart from that, to get some uranium from these countries. Largest reserve किसके पास है ये बताओ चलो। एक तो होता है ऑस्ट्रेलिया। रिजर्व्स होना और एक होता है ऑस्ट्रेलिया। प्रोड्यूसर होना, ठीक है। तो लार्जेस्ट रिजर्व्स आर विद ऑस्ट्रेलिया एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज कजाकिस्तान। ठीक है। सेम चीज अब आपको लिथियम में भी करनी है कि लार्जेस्ट रिजर्व्स किसके पास हैं, सॉरी किसके पास हैं, तो वो वहां पर है ट्रायंगल में, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। तो जो इंपॉर्टेंट है यूरेनियम, दीज ऑल आर क्रिटिकल मिनरल्स एंड दे रिमेन इन द न्यूज। लिथियम, ये सब इंपॉर्टेंट है। कोबाल्ट ऑल्सो, प्लीज ऐड कोबाल्ट ऑल्सो। मूविंग ऑन, Subcosia Gorge, located on close to meeting point of the Deccan Peninsula and the Eastern Ghats, is carved out which of the following rivers? तो सबकोसिया जो आपका टाइगर रिजर्व है वहां पे कौन सी रिवर जाती है, ये भी अगर आपको पता है तो यू कैन देन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ठीक है। सो आंसर इज सुवर्णरेखा, ब्रह्मणी, महानदी, दामोदर। एटलीस्ट दामोदर को तो आप एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। ठीक है। आंसर बेसिकली सुवर्णरेखा को भी आप एलिमिनेट कर दोगे। आंसर बेसिकली बी और सी में से फंसेगा। आई होप यू गाइस नो द आंसर इज महानदी, बट इट वाज अ टफ क्वेश्चन, फिर से बताऊं तो, ठीक है। वेरी वेरी यूनिक पॉइंट इफ यू हैव नॉट रेफर्ड टू इट, और जो रिवर्स भी दे रखी है वही की दे रखी है, तो इट इज अ टफ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉनीफिनॉल्स एंड नॉनिल फिनॉल ethoxylates have raised some concern in India. Why? ठीक है, कर सकते हैं होप आप इसको। It was in news also. So answer is they are basically वो जो होते हैं ना डिटर्जेंट और वो सब उनमें यूज होते हैं, उसकी वजह से मरीन पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, उसकी वजह से फिश मॉर्टेलिटी हाई हो रखी है। सो आंसर इज सी। तो वैसे भी आप गैस कर सकते थे रिवर्स और फिश, तो थीम सेम होगी। इकोसिस्टम सर्विसेज मेक ह्यूमन लाइफ पॉसिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोविजनिंग सर्विस। आप आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, सप्लाई ऑफ फूड यही आंसर। व्हाट इज कॉमन टू प्लेसेस जजंगा, रुंगता, चित्रदुर्गा, गोरु महेशनी? सो ऑल ऑफ देम आर नोन फॉर आयरन माइनिंग। ठीक है। व्हाई दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड? सुप्रीम कोर्ट जजमेंट on two of the mines listed above. The state government has the sole authority to include any part of the territorial waters as national park within its boundaries. Transaction of lawful businesses within any person deciding wildlife is granted as per necessity. ठीक है। तो ये गलत हो गया, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती।
टेरिटोरियल वाटर के साथ दिखेगा नहीं। आई डोंट नो अबाउट दिस स्टेटमेंट, देख लेते हैं। ट्रांजेक्शन ऑफ लॉफुल विद एनी पर्सन residing in the wildlife sanctuary is granted as per this। हाँ तो ये तो ठीक है, लॉफुल बिजनेस है, एज पर द लॉ अगर वो कर रहे हैं तो दिस इज ऑब्वियसली अलाउड ही रहेगी ना, क्या दिक्कत है इसमें। Gothenburg Protocol is most closely associated with, I hope you guys know this, answer is नाइट्रोजन भी है थोड़ा बहुत और ओजोन भी है, but I would go with C, ozone. This was asked in mains this year. Moving on, which of the following type of climate is likely to host cotton grass? Says is dwarf, willows, birches, lichens. Lichens आ गए तो क्या आ जाएगा? कैल्प तो खुद ही एक टाइप होता है, बोरियल भी गलत हो गया, टुंड्रा हो गया इसका आंसर सीधा बिकॉज ऑफ दिस। Lipid nanoparticles are often seen in use in context of, read more on these lipid nanoparticles. The correct answer is RNA vaccine, कोविड के टाइम पे न्यूज में था, ये द हिंदू में आ रखा था। So, ये कीवर्ड्स है। अब पहले भी कुछ प्रो वायरस कीवर्ड आ गया था, एक वो भी हिंदू में आ रखा था। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स और वो भी आ रखा था। So, यही कीवर्ड्स हैं जो आते रहते हैं, जो हमसे मिस हो जाते हैं, यूपीएससी यही पूछ के मार लेती है। काइनेटिक इम्पैक्ट, ठीक है। Voluntary contributions, assessed contributions, sustainable financing are sometimes seen in the news with regards to WHO. If you have read PEH, जो मैंने बोला था कि 2022 के भी आपको पढ़ने हैं, या आपने सॉल्व किया है TTS 2022 का, तो वहां पे आपने इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखा होगा स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के अकॉर्डिंग। Which of the following is correct description of Bucharest 9 countries? B9 countries were in news recently due to Ukraine war. ठीक है, so some Eastern Europe countries which joined NATO. Organization of Security, सेम आर्टिकल से ये दोनों क्वेश्चन बैक टू बैक बनाए गए, ठीक है। सेम हिंदू का एक्सप्लेन आर्टिकल, उससे बैक टू बैक दो क्वेश्चन। ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, ठीक है। सुंडा स्ट्रेट, नसीना स्ट्रेट, ओट्रांटो स्ट्रेट, बोस्फोरस स्ट्रेट। प्लीज डू दिस। पीएच में मैंने दे रखी है ये सारी स्ट्रेट जो न्यूज में थी, ठीक है। और खासकर से ब्लैक सी और उसके आसपास का एरिया तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अभी के लिए। आई होप एटलीस्ट आपको पता है कि पहली वाली जो है वो करेक्टली मैच्ड है, इतना तो पता ही होगा आई होप। मूविंग ऑन, यूएनएससी काउंटर टेररिज्म कमेटी, सीटीसी, आसान है ये, आप खुद से कर सकते हैं। हाउ पार्टिसिपेशन इन इंडो पैसिफिक, वही IPEF will help India by building a system of resilient supply chains, that is part of this. Improve India's trade with member state due to reduced tariff, no tariff charges, nothing is related to IPEF. I hope you guys know this. So 2 is wrong, 2 is wrong, 1 is correct, answer is C only, 1 only. India has not yet signed Budapest Convention on Cybercrime 2001. Yes, India has not yet signed it. Correct, absolutely. India has signed Global Declaration of Future. No, India has not signed this also. In a just society, the rights secured by justice are not subject of political bargaining. In a just society, the rights secured by justice are subject to social obligation. No, they are not subject neither to political bargaining nor to social obligation. किसका स्टेटमेंट है, पता कर लेना। आंसर इज 1 ओनली। PSIR वालों को तो एटलीस्ट पता होगा। रेड सॉइल develops on the crystalline igneous rocks in areas of low rainfall, ठीक है। हो सकता है मैनिपुलेट कर दिया हो एग्जाम में। Arid soils have normal to high nitrogen but are very deficient in phosphate content, ठीक है। No soils are having nitrogen, so 2 is 1, ठीक है, 2 is 1. Laterite soils are found in some areas of Kerala, Karnataka. Yes, so answer is A. Moving on. Arable land in the irrigated zones of India is turning saline due to which of the following reasons? आप खुद कर सकते हैं। Addition of gypsum is a solution to that, not a problem. So 1 is gone. Over irrigation is, yes, answer is B. Moving on. Which of the following statements is not correct? Nickel is found in Jharkhand. Sukinda Valley, Odisha is known for chromite resources. Both flaky amorphous varieties group. There are no zinc lead active mines in India at present. ठीक है, अब वही है कि दिस इज वेरी क्रूशियल
एंड वैसा स्टेटमेंट हो गया देयर नो जिंक लेड एक्टिव माइंस इन इंडिया, रॉन्ग हो गया, राजस्थान में पाई जाती है। Under which of the following acts the trade between India and Europe passed from the hands of the company to private traders? 33 तेरे मैं आया था बट लिमिटेशन रह गई थी, एक दो ट्रेड अभी भी मोनोपोली ऑफ द कंपनी रह गया था, बट 33 में वो सब हटा दिया था। Like the American courts, the Indian courts also follow a double system of courts? No. Like the British Parliament, Indian Parliament doesn't know. Which of the following is a BOMA technique associated? BOMA technique was in news recently, and this had associated the wildlife conservation. In absence of cold Labrador current, which one of the following would happen? तो आपको पता होना चाहिए cold Labrador current कहाँ पर होता है, and it is associated with what? You should know that also. So it is associated with fishing. So answer is A. Olive ridley turtle is our correct. They are smallest and most abundant of sea. ये तो correct है एकदम. They live in the warm water of Pacific, Atlantic, Indian. ये भी correct है एकदम. The Coromandel coast is not the largest. कहाँ पर है? उड़ीसा में is the largest. नाम बताओ जल्दी से. ग्राइर माथा। Yes. Which of the following is the most favorable reason for thick on the western slope of the Western Ghats? इसमें क्या बताएंगे मतलब हैं? What are the traditional regional saris mainly produced in Maharashtra that are embroidered with a golden colored doors and use parrots as motif? ठीक है, तो पटोला नहीं होगी। क्यों नहीं होगी पटोला? क्योंकि गुजरात की है। कलमकारी नहीं होगी। अब बचे दो। आंसर इज पैठानी सारीज फ्रॉम महाराष्ट्र। रंजीफा, चारवार, नार्सरी आर काइंड्स ऑफ गेम्स। नहीं आता है तो छोड़ दें, ऐसे क्वेश्चंस को अगर नहीं आता है तो छोड़ दें। With reference to Artemis Accords, I hope you guys know these are news. Which of the following are correct? It is an agreement that allows mining in support of scientific missions. Yes, यही एक important point है इसका. Thank you for joining me in this session. Overall, this particular paper was not that easy. Okay, it was fairly challenging. Somewhere around 80. Okay, would be a good score. In fact, I would say very good score. Okay. Thank you for joining in this session. हेलो Yeah. कप्तान। हेलो। Yeah, I can hear हाँ you. कप्तान, हरियर और बुक्का फर्स्ट जो थे वो काकतिया रूरल के फ्यूडरीज थे और उन्होंने ही हाँ, बाद में they जाके emerged. इंडिपेंडेंसी डिक्लेयर कर दी थी, यही Okay, कहना था। okay. ओके Okay, so someone actually was saying कि वो वहां से emerge हुए थे. So they were the feudatories of Kakatiyas, and they set up their own, I would say, dynasty. डायनेस्टी। Thank you. And then later on became empire, obviously. Thank you for joining in this session. Bye bye. Take care.